हेलो स्टूडेंट्स। टास्क 1 लेटर चेक करने से पहले टास्क 2 चेक करते हैं। Many historical sites and museums are mainly visited by tourists, not local people. Why? क्यों हो रहा है ऐसा? What can be done to attract local people? Okay. Foreigner, यहाँ पे सिंगुलर है तो आपने हैव कैसे लगाया? सिंगुलर नहीं आना था, ऐसे लगना था इसके साथ. More interest in historical buildings and museums as compared to natives. Okay. कॉमा के सॉरी फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट वर्ड कैपिटल आएगा. There are several reasons behind this lack of residents' curiosity in this essay. Will not only discuss the reason but also the solution of this. Okay. In this essay, I will not only आएगा, I will. And यहाँ पे सिंपली उनका मोर इंटरेस्ट है. यहाँ पे आप लिख सकते थे इट हैज बीन प्रिवेलेंट टू सी दैट, ऐसा करके. द मेजर कॉज फॉर वाई townies, okay, have less passion regarding ancient monuments is आएगा because नहीं आएगा. They already know the facts and building structure as they read it during their school time and listened as read it during their school time and listened as stories from their elders. Okay. So it's old for them whereas it is new for visitor. Whereas के पहले comma. That's why whenever they got chance to know something new, they do not want to skip it. Do not में हाइफन नहीं आएगा. They, अभी यहाँ पे they कौन है? यहाँ पे आपने old for them, new for visitor. They them तो आप नेटिव लोगों के लिए यूज कर रहे हो ना, तो अभी ये वाला they किसके लिए यूज किया है, स्पेसिफाई करिए. तो यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा. दैट्स वाई whenever visitors like foreigners or tourists get chance, got नहीं आएगा, get आएगा. Apart from this, due का d small आएगा. Local tourist, due to tourist destination, ticket price is either high or ticket are unavailable, owing to sell in black to get extra profit, which is not affordable for middle class person in developing countries. Thus, they prefer not to go there. Okay. ड्यू टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जगह पे ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज़्यादा सही रहेगा. टिकट प्राइजेस आर ईदर हाई और टिकट्स आर अनअवेलेबल ओइंग टू बीइंग सोल्ड आउट इन ब्लैक. सेल की जगह पे सोल्ड आउट इन ब्लैक टू गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट. ओके. फाइन, बट आपने ठीक है इधर और लगा लिया, ओइंग टू भी लगा लिया, विच करके भी लगाया, तो इसको विच वाले से नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया जा सकता था. Since it is not affordable for local people, comma, they do not prefer to go there. यहाँ पे since लगा के किया जा सकता था. To enhance the charm of historical mentions and galleries, there are some necessary steps that should be taken. The government आएगा, should start funding to refurbish no लिखो, for आएगा, for the refurbishment of exhibitions. अगर 2 लगाना है तो MET नहीं लगाएंगे, MENT नहीं लगाएंगे. अगर 4 लगाना है तो फिर ठीक है. Of exhibitions and important buildings. In this way, the price of ticket will drop, and it would be chance for poor person to get first and knowledge as he can afford it. It would be a chance for a chance. सारा सही है. Besides, management should try to redecorate or make over building like on roof or interior and exterior walls to give a appealing look which can attract the dwellers. It would be win-win situation for both. As suggested, mass नहीं आएगा, masses आएगा. Get chance to enter in the building and organization will get money for further use. Okay. तो जो आपने रीजंस बोले हैं, एक तो रीजन आपने ये बोला है कि वो स्कूल में ऑलरेडी उनको सब कुछ नॉलेज है. दूसरा महंगा है. महंगे वाले का सोल्यूशन तो आपने बोल दिया, बट यहाँ पे अपीलिंग वाला कि उन्होंने ऑलरेडी नॉलेज है,
तो बिल्डिंग को रीडेकोरेट करने की जगह पे आप जो नॉलेज को इंटरेस्टिंग वे में प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे कई म्यूजियम्स में ऐसा होता है ना, हेडफोन लगा के आप सुन सकते हो, एनिमेटेड मूवीज होती हैं, ऐसा कुछ कुछ करके होता है, वो कर सकते हो। अब बिल्डिंग ये वगैरह थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि उसी नॉलेज को बिल्डिंग देखने की जगह पे किस वे से नॉलेज प्रोवाइड करे वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। टू सम अप मत किया करो, टू कंक्लूड या टू रिकैप्चुलेट किया करो। कल्चरल सी स्मॉल आएगा। Monuments and collection studios are the asset of any culture or nation, and to keep it alive among inhabitants, the देखो G small आएगा, must take obligatory steps। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक आप स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, इट कैन बी केप्ट अलाइव प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो ऐसा किया जा सकता है, राइट। मैं जो प्रीवियसली वीडियोस अपलोड की थी वो 25 मिनट्स तक होती हैं, अभी मैं इसलिए अननेसेसरी बार बार रिपीट करने की जगह पे या वही रीड करने की जगह पे न्यू वे ट्राई कर रही हूँ, ताकि जो कम लेंथ की वीडियो हो, आपको भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो लाइक वीडियो देखने में। बट मैं आई होप मैंने आपको क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर भी अच्छा लिखा हुआ है, कुछ स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हुए हैं, बट लेट मी काउंट। अगर आपको 7 बैंड चाहिए, 7 स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं, आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाया, ओके। उसके बाद सो मत लिखा करो, देयर फोर हैंस दस ऐसा लिखा करो। ड्यू टू लगाया, टू ओइंग टू इधर, और बट ओइंग टू का आपका थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, मतलब ओइंग टू स्ट्रक्चर ठीक है, उसके बाद ग्रामेटिकली थोड़ा सा आगे रॉन्ग हो गया। दैट्स इट। 1 2 3 4, नहीं एक वेयर एज भी लगाया आपने, 5 स्ट्रक्चर्स लगाए, ठीक है, 6.5 तक हो सकता है आपका। बाकी पैरामीटर्स भी चेक करते हैं, बट एक बार मुझे फिर से कंफर्म करने दो कि यहाँ पे या आपने नहीं लगाया कोई और स्ट्रक्चर। ओके, दैट मीन्स आपके 6.5 तक आ सकते हैं। अभी दूसरा देखते हैं कि आपके 5 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, आपने अलग अलग बोलने की कोशिश की, नेटिव, रेजिडेंट्स, क्यूरियस, ठीक है, क्यूरियोसिटी सॉरी, एंशियंट, ओके। ओके, काफ़ी वर्ड्स आपने लिखे हैं, यूज़ किए हैं। ठीक है, आपके 6.5 तक हो सकते हैं। 6.5 लाइक ओ अच्छा है, लाइक ना 6.5 से कम है, ना 6.5 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी की हुई हैं। तो आई मीन टू से कि अगर आपके वो कैब ज़्यादा है, टास्क रिस्पॉन्स आपका ठीक है, आपने अच्छे वे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की प्रॉपरली ट्राई किया है, दैट इज़ नाइस, टास्क रिस्पॉन्स में ठीक है। स्ट्रक्चर 5 यूज़ किए हैं, वोकेबलरी 5 से ज़्यादा यूज़ किए हैं, बट जो ग्रामर में आपने थोड़े कुछ चीज़ें जो गड़बड़ की है, एक तो फुल स्टॉप के बाद स्मॉल कैपिटल का गड़बड़ नहीं करना है। लेट मी सी, अगर कोई दूसरा वाला वो कर, जैसे स्मॉल कैपिटल का गड़बड़ नहीं करना है, ये एंड ये, और उसके थोड़ा सा आर्टिकल्स का इशू है जो मैंने साथ में बताया है आपको कि दो वगैरह कहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे मासिस ई एस लगाना था ग्रामेटिकल, और जो मैं आपको होप राइट क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे मैंने बोला छोटी छोटी ग्रामेटिकल, जैसे यहाँ पे कॉमा नहीं था, ऐसे ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे ओइंग टू सेल इन ब्लैक नहीं आएगा, ओइंग टू बीइंग सोल्ड आउट इन ब्लैक ऐसा करके बोल सकते हो।
तो इसमें से मतलब थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, बट आपका इसके अकॉर्डिंग तो अच्छा ही है कि आपके 6.5 आ सकते हैं। और आपने यहाँ पे सिंगुलर SES की गड़बड़। ओके, अभी आपका लेटर देखते हैं। यहाँ पे अच्छे से नहीं हो रहा, तो मैं आपको यहाँ पे स्कोर दे देती हूँ। ओके, तो 6.5 है, नाइस। अभी देखते हैं लेटर में कितनी स्कोर है। अगर आप ये सिली मिस्टेक्स ना करते, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सिली मिस्टेक्स ना करते और स्ट्रक्चर 2-3 और यूज़ करते तो ज़्यादा सही रहना था। और मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी टाइट मार्किंग करें, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो 1 2 इधर और 3 और ड्यू टू 4, ड्यू टू और ओइंग टू सेम वे से यूज़ होता है। तो मैं उसको रॉन्ग नहीं बोल रही हूँ, अच्छी बात है आपने यूज़ किया, लेकिन आपने हम जो काउंट करेंगे थोड़ी सी टाइट मार्किंग करके करेंगे। मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि आपने कहीं पे एज भी यूज़ किया था। टोटल तो आपके 5 बन रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको 6.5 बन रहे हैं स्कोर ओवरऑल। सिली मिस्टेक को कम कर लो और स्ट्रक्चर इंक्रीज कर दो, आपकी स्कोर 7 तक हो सकती है। योर फ्रेंड वुड लाइक टू विजिट यू, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट फ्री, apologize why you are busy and suggest another time. Hope this letter finds you as fit as a fiddle. Glad to know that you are, वाई आर नहीं आएगा ना, यू आर आएगा। मेकिंग ए प्लान टू कम एट माई प्लेस फर्स्ट वीक ऑफ मंथ, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ मंथ ज़्यादा सही है। आई एम सॉरी टू टेल दैट आई एम, आई कैपिटल आएगा, नॉट एबल टू टेक वेकेशन फ्रॉम माई प्लेस, कुड यू मूव दिस एरिया टू थर्ड वीक ऑफ अपकमिंग मंथ, सॉरी मूव दिस आइडिया। आपको आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत थी, आप सजेस्ट यहाँ पे कर सकते थे। आई एम कैपिटल आना था, वाई यू आर बिजी, वैसे एक लाइन लिखने के बाद काइंडली स्पेस छोड़ दिया करो। एज यू नो आई एम वर्किंग एज एन, एज नहीं आएगा, एज एन assistant manager and my manager is going to Toronto for business trip. I am not working only as a manager but also doing my job too. हाँ, वर्किंग एज एक्टिंग मैनेजर, मतलब अभी भी मैनेजर नहीं बने हो, बट जो मैनेजर की ड्यूटीज आपको मिली ना टेम्परेरी, तो एज एन एक्टिंग मैनेजर बोलोगे आप, बट ऑल्सो डूइंग माई जॉब टू। सो देयर वुड बी अ बिग प्रेशर और बर्डन, दोनों लिखने की क्या जरूरत है, प्रेशर ऑन मी टू कंप्लीट टास्क बिफोर डेडलाइंस, यहाँ पे कंप्लीट करो, टू कंप्लीट टास्क बिफोर डेडलाइन। आई होप यू गेट इट। आई एम सजेस्टिंग टू थर्ड week of next month because of some reason. Firstly, I will be I capital able to get week off from my workplace, so it would be break for me to two sorry, also लगाया ना, also की जगह टू लगाया, it would be break for me to TW after that hard work. Secondly, there would be Canada's biggest traveling carnival, which would be best entertainment for kid and for us as well, kids as you know kids. um, Apart from this, you will get a chance to meet our old college friends and fresh up old memories. I hope you will understand my situation. You will में contraction आएगा, love के बाद comma आएगा, but यहाँ पे देखो apart from this नहीं करना था, क्योंकि आपने firstly किया, secondly किया, इसको last but not least करके या finally तीन इसको करके finish करना था, ठीक है। अगर हम देखें तो आपके लाइक कैपिटल स्मॉल लेटर्स की गड़बड़ हो रही है, ऐसे लेटर दोनों में। लेकिन अगर हम देखें, मैं बोलती हूँ कि लेटर में 3 स्ट्रक्चर, 3 वोकैब एंड 3 इडियम्स यूज़ किया करो इनफॉर्मल में। तो देखते हैं, आपने इडियम तो एक ही यूज़ किया है, दैट्स इट, एक ही इडियम यूज़ किया है, 3 नहीं है। और अगर हम वोकैब देखें आपने कहीं पे यूज़ की है, तो ओह, आपने एक और स्ट्रक्चर यूज़ किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, एक और मिल जाए मैं आपको 7 दूंगी, कि आपने मिस्टेक्स थोड़ी सी कम है। वोकैब भी मैं देखती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे आपने बिकॉज ऑफ लगाया ना, बिकॉज ऑफ की जगह पे ड्यू टू कर सकते थे यहाँ पे। ए वोकैब,
7 वाली vocab बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया आपने, मुझे लगा नहीं कि ओके। यहाँ पे तो मैं आपको 6.5 ही दे पाऊंगी। ओवरऑल आपके 6.5 ही हुए फिर। थोड़ी सिली मिस्टेक्स कम करिए। यहाँ पे आप क्या ऐड कर सकते थे? वी कैन रिलीव अवर नॉस्टैल्जिक मेमोरीज। रिलीव वर्ड आ सकता है और नॉस्टैल्जिक वर्ड आ सकता था। उसके बाद आप कर सकते थे ओवर द मून बोल सकते थे ईडियम कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। ग्लैड टू नो की जगह पे आई एम ओवर द मून टू नो दैट, ऐसा करके फाइनली ये प्लान बना दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोल सकते थे कि अगर तुम आए तो आई विल फील लेथार्जिक एंड वी वॉन्ट बी एबल टू एंजॉय, ऐसा कुछ कर। लेकिन लेथार्जिक थोड़ा लेजी होएगा। टायर्ड एग्जॉस्टेड बोल सकते थे, एग्जॉस्टेड हो गए काम के बाद, ऐसा करके सकते वर्ड बोल सकते थे। ठीक है, ओके। सो 6.5 नॉट बैड। सिली मिस्टेक को ठीक करो और 7 लेके आओ। जो भी मिस डाउट हुआ आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, फिर भी मैं लिंक दे दूंगी स्टूडेंट के 7 बैंड आए हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे और वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज करनी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू, बाय बाय।